Hello students, we were discussing the ionic equilibrium. In the previous video we have discussed all the concept of the chapter, and today we are going to discuss the exercise NCERT. Some of the question from simple equilibrium have been discussed in the previous video. So today question number 14. It is given that 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in 10 liter vessel and heated to 725 Kelvin at equilibrium. 40% of water by mass react with carbon monoxide according to the equation. Question number 14. It is given H2O plus CO will give H2 plus CO2. All are gases. Gas, 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 gas. Temperature is given. Absolute temperature 725 Kelvin. 725 Kelvin. चलिए 40% of water by mass reacted at equilibrium. Suppose we have 100% H2O and 100% CO. Let assume 100 gram of H2O, 100 gram of CO, or 100 mole of H2O, 100 mole of CO are taken initially. So at equilibrium, अगर equilibrium को consider करेंगे, 40% has been diffused, 40% has been reacted, means 60% left behind. 40% of H2 and 40% of CO2 are formed. Now Kc will be 40 multiply 40 divided by 60 multiply 60, and it is 16 upon 36 or 4 upon 9 and 0.44 आंसर. सिंपल. ठीक है. Question number 16. What is the equilibrium concentration of each of the substance in the equilibrium when the initial concentration of iodine chloride was 0.78 m? According to the equation, question number 16. According to the equation, 2ICl gives I2 plus Cl2. Initial concentration of this ICl is 0.78 molar, 0.78 m. It is T is equal to 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो उस समय की बात है. बट एट इक्विलिब्रियम सपोज 2x अकॉर्डिंग टू द साइचोमेट्री 2x reacted x and x is formed, so Kc will be x square upon 0.78 minus 2x, and the value of Kc is given, that is 0.14. So put the value of Kc 0.14, x square upon 0.78 minus 2x. So 0.14 multiply 0.78 minus 0.28x equals to x square, and x square plus 0.28x minus 0.1092 equals to 0. So calculate the value of x and put at equilibrium concentration. You will get the concentration of each component at equilibrium. यहाँ से x का वैल्यू निकालिए. x के दो वैल्यू आएंगे, ठीक है. x के दो वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू इससे बड़ा आएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये घटेगा. एक इससे छोटा आएगा, जो छोटे वाला आएगा उसको x मान करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे. चलिए ये हो गया. इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.
क्वेश्चन नंबर 29 और 28 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई आप करेंगे, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, तो बाकी क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई कर लीजिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वेरी क्लासेस में होंगे इस चैप्टर के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ वीडियो ऑन दिस एक्सरसाइज, ऑन द होल एक्सरसाइज, बिकॉज हमको नेक्स्ट बुक भी स्टार्ट करना है, ऑक्सीडेशन, तो फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, इट इज गिवन दैट डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद द स्टील एज पर फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन भाई साहब ने बताया है। वो कह रहा है कि मैं डाइहाइड्रोजन हर बार प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है, कर रहे हैं। वो कह रहा है राइट एज एक्सप्रेशन फॉर केपी फॉर द अबव रिएक्शन। वो कह रहा पूरी रिएक्शन के लिए केपी लिखो, ये लिख दिया, केपी इक्वल्स टू केसी मल्टीप्लाई आरटी पार डेल्टा एन, ठीक है। करें जरा, केसी CO H2 क्यूब डिवाइड बाई CH4 H2O R। तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि वो उसने पूछा केपी का वैल्यू, तो केपी का वैल्यू क्या होगा, केपी विल बी केसी मल्टीप्लाई आरटी पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड सॉरी माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, that will be 2 because of 4 mole are present of product and 2 mole of reactant are present. So Kp will be Kc, the value of Kc will be concentration of CO, concentration of H2 cube, concentration of methane and concentration of water, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका सॉरी 28 के अंदर ये पूछ रहा है कि हाउ द वैल्यू ऑफ Kp एंड द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए हम बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो बैकवर्ड जाएगा, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हो तो बैकवर्ड जाएगा। तो अगर प्रेशर बढ़ा तो किसका बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, स्टेबलिश हो जाएगा। बी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब भी वो बैकवर्ड ही जाएगा, तभी भी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। Next one, using a catalyst, catalyst will not affect the equilibrium, but it can affect the establishment of equilibrium. Equilibrium की कंपोजिशन को, कांस्टेंट कंपोजिशन को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। चलिए, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, describe the effect of addition of H2 on this reaction। अगर H2 का देखना है तो हमने कहा था अगर इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन किसी चीज का तो उससे दूर भागता है इक्विलिब्रियम, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, इससे दूर फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, अगर एडिशन करते हो आप CH3OH का तो इससे दूर भागेगा तो बैकवर्ड। रिमूवल करते हो CO का, CO का रिमूवल यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, CO का रिमूवल, अगर CO का रिमूवल कर रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन। अगेन CH3OH का रिमूवल कर रहे हैं तो फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा। चलिए, तो अभी इसको रब कर लेते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट ही है क्वेश्चन नंबर 30, एट 473 केल्विन। चलो टेम्परेचर लिख ही लेते हैं, वैसे तो कांस्टेंट रहना है इक्विलिब्रियम के लिए। कांस्टेंट Kc फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस दिस PCl5। Kc भाई ये है क्या है, 8.3 × 10⁻³ ये इसमें बता दिया। इफ द डिकम्पोजिशन इज डिपिक्टेड एज, अगर डिकम्पोजिशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, कैसे, ऐसे, ये हो गया। देन डेल्टा H भी इसने कहा है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन और 1240 किलोजूल पर मोल। मैंने कर दिया इसका मतलब, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो ये एंडोथर्मिक है, यहां से पता लग रहा है भाई। डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है।
ठीक है, एंडोथर्मिक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द केसेस, ये भी कोई बात है, केसी के लिए इसने एक्सप्रेशन लिखवाया जो हमसे, ये तो बहुत खत्म चीज है, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आप लिख दिया। ये था हमारा ए। इसने कहा बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेंपरेचर, क्योंकि केसी का वैल्यू इसने पहले ही प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन अगर मैं लिखूं PCl3 बी के लिए प्लस Cl2, जिन बच्चों के समझ नहीं आ रहा, जिन्होंने समझा नहीं था दूसरे तीसरे लेक्चर में इसी चैप्टर के, वो देख ले कि रिवर्स के लिए सपोज मैंने केसी डैश कर लिया, तो ये क्या आया PCl5 डिवाइड बाय PCl3 एंड Cl2। अब क्या है कि ये केसी डैश जो है ना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ केसी सिंपली, तो केसी का वैल्यू पुट करो और केसी डैश का वैल्यू निकाल दो इनटू 10 टू द पावर -3 8.3, तो ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 8.3, इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट इसका, वो कह रहा व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन केसी इफ मोर PCl5 इज एडेड, इफ मोर PCl5 इज एडेड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन केसी। तो PCl5 ऐड करोगे तो केसी का वैल्यू घट जाएगा, केसी डिक्रीजेस। यहां देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, यहां से बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर इज इंक्रीज, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज, सी का फर्स्ट था, सी का सेकंड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज देन द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड टुवर्ड द लेस वॉल्यूम। लेस वॉल्यूम किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, बैकवर्ड हो जाएगा। अब बैकवर्ड जब होगा तो केसी का वैल्यू फिर से घटेगा, क्यों? बैकवर्ड होने का मतलब है कि PCl3 और Cl2 नहीं बनेंगे, PCl5 ज्यादा बनेगा। अब अगर प्रेशर इंक्रीज करो बैकवर्ड, और बैकवर्ड की वजह से PCl5 कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो केसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर इज इंक्रीज, थर्ड है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक यानी कि टेम्परेचर खा रही है, टेम्परेचर लग रहा है, फ्यूल है टेम्परेचर इसके लिए, तो इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा PCl, ठीक है, PCl3 और Cl2 ज्यादा बनेगा, ये था सिंपल। चलिए तो बाकी इसके बाद आप कर लेंगे थोड़े क्वेश्चन फुल। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35 से आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज मीन्ड बाय द कंजुगेट, यहां से आपका आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है उसके क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय द कंजुगेट एसिड बेस पेयर, फाइंड द कंजुगेट एसिड बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज। बहुत सिंपल है, 2-3 के मैं करा दूंगा। कंजुगेट एसिड बेस पेयर आपको बताया था कि जब कंजुगेशन में रहता है तो उसमें केवल डिफरेंस होता है H पॉजिटिव और H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। जो H पॉजिटिव दे पा रहा है वो एसिड है, जो नहीं दे पा रहा है जिसने डोनेट करने के बाद जो कंपाउंड बना है वो उसका कंजुगेट बेस हो जाएगा। जैसे कि अगर HNO2 की बात करें तो NO2 नेगेटिव मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये कौन है, ये H प्लस डोनर है तो ये एसिड है, और ये कौन है, ये नहीं, ये इसमें दे करके बना है तो ये बेस है, और दे आर कंजुगेट ईच अदर, तो ये कंजुगेट पेयर बना, कंजुगेट पेयर हो गया, ठीक है। एज इट इज फॉर CN नहीं दिया, लेकिन इसमें H प्लस एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टर है ना H प्लस का, तो एक्सेप्ट ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये कौन, एक्सेप्टर कौन है, ये, और डोनर कौन है, ये, तो ये एसिड हुआ, ये एक्सेप्टर बेस हुआ, और दोनों बेस, दोनों पेयर हो गए, कौन हो गए, कंजुगेट पेयर। तो इसी तरीके से आपको सारे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड, ठीक है, 35 था। 36 लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या कौन होते हैं, विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, ठीक है। तो H2O के पास तो ऑलरेडी लोन पेयर है, इट इज डोनर। नेक्स्ट है BF3, ये हो सकता है क्योंकि बोरोन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। नेक्स्ट है H पॉजिटिव, ये भी एक्सेप्ट करेगा, और NH4 पॉजिटिव, इसके पास तो जगह ही नहीं बची, ये नहीं होगा, तो ये दोनों होंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड, अगर वो कह रहा है कि एसिड में लिख दूं HF, ये सॉरी एसिड ये है, इनके लिए बेस लिखना है ब्रोंस्टेड, HF H2SO4 एंड HCO3 नेगेटिव, तो इसके लिए F नेगेटिव क्योंकि एक्सेप्ट कर सकता है, HSO4 नेगेटिव ये एक्सेप्ट कर सकता है, CO3 2 नेगेटिव ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये बेस हुए कौन से कंजुगेट, डिफरेंस क्या है H पॉजिटिव का,
बस, ठीक है। राइट द कंजुगेट्स एसिड, ये नहीं कराऊंगा, इससे नेक्स्ट नहीं कराऊंगा, इससे नेक्स्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 सुनिए आप। उसने कहा है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन a sample of soft drink is, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बेटा ये दिया है 3.8 into 10 to the power minus 3m। व्हाट विल बी द pH, pH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस log एच आयन कंसंट्रेशन, चलिए पुट करते हैं वैल्यू माइनस log 3.8 into 10 to the power minus 3। इस माइनस को मैंने यहाँ लिख लिया, log 3.8 लिख लिया मैंने, प्लस में log 10 to the power 3 लिख लिया, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू चला आ रहा है, log 3.8 है, ये माइनस 3 log 10 हो गया है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई विल कंटिन्यू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए तो ये क्या बनेगा, लो माइनस log 3.8 और प्लस बन जाएगा 3 log 10, ठीक है। अब ये जो माइनस log 3.8 है इसको एज इट इज रहने दें, प्लस 3 लिख ले क्योंकि log बेस 10 हो जाएगा। अब log 3.8, ठीक है, log 3.8 का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो log 3.8 का वैल्यू हम निकालेंगे 0.5798, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लें, 3.0000 0.5798 ये आया 20242, तो वैल्यू आया हमारा 2.42। क्या आया पीएच का वैल्यू, आंसर, ठीक है, ये आंसर है। तो इस तरीके से हमें को क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, ठीक है बेटा। बाकी ट्राई उसमें करेंगे, आपके जो क्वेरी क्लासेस होती है वहाँ पर ट्राई करेंगे वन बाय वन, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप करते रहिए, आप वीडियोस देखें और देख करके उसको परखें, अच्छे तरीके से देखें, उसको अप्लाई करें, उसके जो एनसीईआरटी कंसेप्ट है क्वेश्चन है उन पर अप्लाई करें और नोट्स बनाते रहें सीक्वेंसली जैसे बनाए गए हैं, जैसे बताए गए, ठीक है। उसके बाद रिवीजन आपका होना है, फुल ऑन रिवीजन होना है। फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड बुक नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम रिडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने के बाद फिर आपका एक रिवीजन क्लास अलग से चल जाएगा। चलिए ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।